अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, कल हमने ग्लाइकोलाइसिस से पहले रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज की कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो लेआउट स्टडी किए थे। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बेसिक स्टेप्स थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम प्रॉपर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के हवाले से बात करेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट्स स्टेप बाय स्टेप, and in every step it gives off some sort of the substances that are useful for the respiratory activity. ख्याल आपने ये रखना है कि आपने स्टेप्स को प्रॉपरली स्टडी करना है। हर स्टेप की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में, और इस इंपॉर्टेंस को आप ध्यान में रखेंगे। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एटीपी जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और रेस्पिरेशन का जो मेन प्रोडक्ट है वो एटीपी ही है। इसी एटीपी को सेल्स ने यूटिलाइज करना है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म में। वो हम तमाम बातें अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। So let's begin with the process of glycolysis that is in front of you. So you can see the process of glycolysis is written over here. Normally, in case of glycolysis, glucose molecule, that is a 6 carbon organic carbohydrate, it is converted into two molecules of the pyruvate, and these pyruvate molecules are 3 carbon compound. Beside the pyruvate molecule, two molecule of NAD, that are reduced NAD, can be produced along with the two molecule of ATP. So you must remember this equation of the glycolysis, where a molecule of glycolysis is going to be converted into two molecule of pyruvate, two molecule of reduced NAD, and two molecule of ATPs. अब आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है उसने ये प्रोडक्टिविटी देनी है: टू molecule of pyruvate, two molecule of reduced NAD, and two molecule of ATP, राइट। अच्छा, अब आपने ग्लाइकोलाइसिस की जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है वो याद रखनी है, एंड इट इज द process of splitting of one glucose to two molecules of the pyruvate. ये बुनियादी डेफिनेशन है। इन ग्लाइकोलाइसिस a glucose molecule splits into two molecule of the pyruvate. Normally glycolysis process की जो reactivity है it occurs anywhere in cytoplasm, and all living organism no matter the organisms are prokaryotic type or eukaryotic type, all living organism must pass this glycolysis mechanism to generate two molecule of ATP, two molecule of reduced NAD, and two molecule of the pyruvate. Normally, the glycolysis mechanism है, it is controlled by a number of enzymes. Since it is stepwise reaction, so every step is controlled by one specialized enzyme. We need not to remember the name of the enzymes in our A2 syllabus. ख्याल रखिएगा आपको एंजाइम्स के नेम याद नहीं रखने, ऑल्दो यू मस्ट रिमेंबर दैट एवरी step is controlled by a enzyme, right? Now the process of glycolysis is shown in front of you. You can see that process of glycolysis one by one, and it is step by step process of glycolysis. You must remember these steps, and I just showed here in column step of glycolysis, then the description. So every step is controlled by an enzyme, and you must remember that you have to follow the steps. और स्टेप्स जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो हर स्टेप की डिस्क्रिप्शन भी आपने याद रखनी है। एग्जामिनर का जो पैटर्न है वो ये है कि एग्जामिनर कैन शो यू द ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म इन अ फ्लो चार्ट, and it has got some missing steps, and you will have to just remember these missing steps and just write down the answer what examiner said about the missing steps. पेपर में ग्लाइकोलाइसिस का पूरा रिएक्शन वन गो में नहीं पूछा जाता, तो ये आपने ख्याल रख लेना है बिफोर प्रोसीडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के। स्टेप नंबर 1 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन बी
seen over here. So this is the step number one. You can say this is the step number one, where a glucose molecule undergoes phosphorylation. Now, this phosphorylation is a chemical process where a molecule of phosphate group is added into a molecule. ध्यान में रखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन का है, और इस फॉस्फोराइलेशन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने फॉस्फेट ग्रुप को रिसीव करना है। तो अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप को रिसीव करता है तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। अब सवाल ये आता है कि फॉस्फेट देगा कौन? तो मेंशन हुआ है यहाँ पर साइड पर कि a molecule of ATP undergoes hydrolysis process and it gives off its phosphate group, और ये फॉस्फेट ग्रुप जाकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 पर अटैच हो जाती है। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हम यहाँ देख रहे हैं नीचे, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा एक बात है, वो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि व्हाई दिस ग्लूकोज गेट फॉस्फोराइलेज्ड। इसकी बहुत ही इजी सी बेटा एक आंसर है, ऑप्शन है, वो ये है कि glucose molecule itself is a stable molecule and it is comparatively less active. So to get activation, glucose is to be phosphorylated. मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा। Glucose itself is a stable compound and it is comparatively less active. So to get activation, a molecule of phosphate is added in a glucose so that the molecule of glucose gets activated. तो अब ये एक्टिवेशन के लिए फॉस्फेट को रिसीव कर रहा है। नाउ व्हेन फॉस्फोराइलेशन अकर्स, so glucose molecules are activated and they can easily react with the other substance in next step. अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, इसे हम नाम देते हैं स्टेप नंबर 2, एंड दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेशन स्टेप। So in next step, what is happening? The glucose molecule undergoes couple of chemical reaction. First reaction is called as the phosphorylation, and the couple reaction is called as the isomerization. So what is happening over here? You can see in this step number 2, the glucose molecule that is now called glucose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bisphosphate molecule. Right? अगेन फॉस्फोराइलेशन हुई है, अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल ने अपनी फॉस्फेट को डोनेट किया है, और a molecule of glucose is going to be converted into fructose molecule. Then this fructose has got another phosphate, and second time phosphate is going to attach with the carbon number 1. That is why this resulting compound is known as fructose 1,6 bisphosphate molecule. Right? अब फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि why glucose is going to be converted into fructose molecule. रीजन बेटा अगेन फिर वो आ जाता है इस तरह का कि ग्लूकोज इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टिल इट इज द रिगिडिटी कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो टू मेक more activation, the glucose molecule is converted into fructose. Comparison करेंगे तो fructose is comparatively highly reactive compound. So as soon as fructose is formed along with the 2 phosphate group, so this fructose 1,6 bisphosphate molecule can react easily in next reaction. तो reaction number 3 आपके सामने यहाँ पर mention किया गया है। This is called reaction number 3 and it is called as the lysis step. You can refer this step over here, glucose step number 3. Splitting of fructose occurs and a fructose splits into 2 molecule of triose phosphate. So you can see over here
This is the molecule of fructose 1,6 bisphosphate. The process of lysis is going on enzymatically. Fructokinase is the enzyme you need not to remember. Or you can also say kinase is an enzyme that can break down. Now, this fructose 1,6 bisphosphate splits into two molecules of the triose phosphate. Remember this thing, this triose phosphate basically is a three carbon compound that can be mentioned by a particular molecular form, which is the C3H6 and O3, right? So the C6S, C3H6 and O3 is the molecular form of this triose phosphate. We need not to remember the proper name of this triose phosphate. It is mentioned in different books, but in A levels biology, A2 syllabus, there is no need to remember the name of this triose phosphate. You just remember it is the triose phosphate, means a three carbon compound with a phosphate group. Since it has got phosphate group in it, it is still reactive in nature. Now, the step number 4 comes after this production of triose phosphate. And remember one important thing, from the fructose 1,6 bisphosphate molecule, two molecules of triose phosphates are formed. तो यहाँ से जो reactions हैं, these reactions are considered कि ये twice perform हो रहे हैं, यानी कि मेंशन किया जाएगा फर्स्ट वन टाइम, बट वी अज्यूम दैट दिस रिएक्शन रिपीट सेकेंड टाइम एज वेल, क्योंकि एक ग्लूकोज से दो ट्रायोस फॉस्फेट बने हैं, तो बोथ ट्रायोस फॉस्फेट साइमल्टेनियसली undergo in this particular reactions that starts from step number 4 till end. तो हमने ये ध्यान में रखना है कि स्टेप नंबर 4 से एंड तक का जो भी रिएक्शन है, जो भी स्टेप है, वो एक नहीं है, वो टू है, राइट? तो ये टू रिएक्शंस है, यानी कि अगर एक एटीपी जनरेट हो रही है तो टू हो रही है, अगर एक मॉलिक्यूल NADH का प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स के वो टू हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन रिपीट होगा टू टाइम। तो ये आपने बेटा ख्याल रखना है इसके हवाले से। यहाँ हमने जो देखना है वो ये है कि मैंने रेफरेंस ये किया है, स्टेप में टू दिखा रहा हूँ, इस टू का मतलब है टू, इस टू का मतलब फोर नहीं होगा, क्योंकि स्टेप ऑलरेडी मैं मल्टीपल ऑफ टू के साथ यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 हमें नजर आता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन एटम है, this hydrogen atom is going to remove from the triose phosphate. So you can see here, right? तो मैंने यहाँ टू हाइड्रोजन एटम्स लिखे हैं इसलिए कि वन बाय वन रिलीज होंगे, एक एक ट्रायोस फॉस्फेट से, दूसरा दूसरे ट्रायोस फॉस्फेट से। तो टू हाइड्रोजन व्हेन रिमूव, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो ट्रायोस फॉस्फेट हो रहा है डीहाइड्रोजिनेज, इसे हम ऑक्सीडेशन का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ जहां पर लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ट्रायोस फॉस्फेट, इस स्टेप को वी कैन से ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन इन ट्रायोस फॉस्फेट। ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन जो हो रही है ये ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर या ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल में हो रही है, राइट? तो ये ट्रायोस फॉस्फेट जब ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होगा, तो ये जो लॉस हाइड्रोजन है इसे रिसीव करेगा एक मॉलिक्यूल रिड्यूस एन सॉरी ऑक्सीडाइज NAD का। तो यहाँ पर मेंशन हुआ है NADO मींस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड is a hydrogen acceptor. It can receive hydrogen atom and convert it into reduced NAD molecule. So once hydrogen is released from the triose phosphate, an oxidized NAD
is converted into reduced NAD molecule. अब जहन में रखिएगा कि ये डबल रिएक्शन है, तो 2 times this reaction repeats, so we have got to reduce NAD at the step of 4. याद रखना, फोर्थ स्टेप पर टू रिड्यूस एनएडी की प्रोडक्टिविटी हमें नजर आती है। स्टेप नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर ने स्टेप नहीं दिए होंगे तो यू विल हैव टू रिमेंबर इट। स्टेप नंबर 4, आफ्टर द splitting of the fructose 1,6 bisphosphate that occurs at step number 3, every triose phosphate undergoes oxidation mechanism. When the oxidation occurs, the hydrogen atom is removed. This removed or lost hydrogen is accepted by an oxidized NAD molecule that is converted into reduced NAD. ठीक है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट और होता है, और वो ये है, दिस वन, वो ये है कि एट दिस स्टेज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, at step number 4, when the process of oxidation and reduction occurs, at that time from every triose phosphate 1 ATP is produced. अब क्योंकि 2 triose phosphate हैं तो 2 ATP molecules are produced. It is written here as well in description column, 2 molecules of ATP are also generated here, right? The phosphate group is released from the triose phosphate. अब ये जो ATP बन रहे हैं इसकी आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन को याद रखना है कि a molecule of ADP already available in the cytoplasm, बहुत सारे होंगे, उन एडीपीज में से कोई भी एक एडीपी इस रिलीज फॉस्फेट को, जो कि ट्रायोस फॉस्फेट में फॉस्फेट लगा हुआ है, उसने अपना डिसोसिएट किया, इस फॉस्फेट को एक एडीपी मॉलिक्यूल ने अपने साथ केमिकली एंजाइम्स की मदद से अटैच कर देना है। अब जरा ध्यान में रखिएगा, फॉस्फेट मिल रही है ट्रायोस फॉस्फेट से, मॉलिक्यूल खाली पड़ा हुआ है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का, तो ये फॉस्फेट आया, ये एडीपी है, दोनों आकर एक दूसरे के साथ कंडेंस हो गए। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। ये पहली दफा एटीपी की जनरेशन हो रही है स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसमें मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस एनएडी जनरेशन है। नंबर 2, इसी स्टेप में मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेशन भी मौजूद है। एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो एटीपी प्रोडक्शन है ये किस किस्म की है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था, एटीपी को जनरेट किया जा सकता है 2 केमिकल रिएक्शन के थ्रू। फर्स्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल लिंक रिएक्शन या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जहां पर एक केमिकल सब्सटेंस जो कि सबस्ट्रेट का है उसने अपने फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देना है, और एक घूमता फिरता एडीपी उस फॉस्फेट के साथ अपनी फ्रेंडशिप करेगा, उसको अपने साथ मिला लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो इस तरह के एटीपी की जो जनरेशन है इसे हम नाम देते हैं कि ये एटीपी जनरेशन एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 4 यहां पर कंप्लीट होता है। ये पूरा स्टेप नंबर 4 है जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। स्टेप नंबर 5 फिर हमें नजर आता है यहाँ पर, और वो ये है कि आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड देन वी हैव टू डेवलप एटीपी मॉलिक्यूल, a new molecule is produced and this new molecule is called as the intermediate। अब आपका ख्याल, आपने बेटा बहुत ही ध्यान से इस स्टेप का नाम याद रख लेना है। as soon as step number 4 completes, the resulting compound of glycolysis is known as the intermediate compound। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड नहीं पूछा जाता नाउ अडेज 2023 के सिलेबस चेंज के बाद।
बिफोर 2023 पेपर 4 में जो सेकंड सेक्शन होता था वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते थे। वहां ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को एग्जामिनर कहता था कि डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें। अभी ये नहीं आता। तो अभी आपने जहन में रखना है कि जब आप A2 पास पेपर कर रहे हो तो प्रोसेस को कंप्लीट अपने दिमाग में बिठाने के लिए वो जो सेकंड वाला सेक्शन है वो कीजिएगा, ताकि आपको पूरे पूरे स्टेप्स याद रहें। ठीक है। और पेपर में आजकल नहीं आते तो आपने जो फर्स्ट सेक्शन है वहां के क्वेश्चंस को जहन में रखना है, क्योंकि वो छोटी छोटी सी बातें पूछता है। प्रोसेस आपको पूरा याद होना चाहिए ताकि आप उसमें से कहीं एक छोटा सा एक क्लिप निकालेगा और आपसे उस क्लिप के हवाले से एग्जामिनर ने जो है वो बातें करनी है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बन रही है ना बेटा, तो ये एक इंटरमीडिएट एक जनरलाइज नेम है। इसका स्पेसिफाइड नेम आपको याद नहीं रखना है। अगर बताना होगा तो एग्जामिनर खुद बता देगा, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो हमारा एक स्पेसिफाइड रीजन है ये वाला, तो यहाँ आपको इंटरमीडिएट के जो नेम है वो नहीं याद रखने हैं। राइट। अब ये इंटरमीडिएट जो कि प्रोड्यूस हुआ है और इसका जो भी नाम है एग्जामिनर आपको बता देगा। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, ये कहलाता है फॉस्फिनोल पायरुवेट। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा। इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की फाइनल रिएक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज दी स्टेप नंबर 5। अब ये स्टेप नंबर 5 है। यहाँ पर यू कैन सी स्टेप नंबर 5 ओवर हेयर, एंड इन डिस्क्रिप्शन हेयर यू कैन रीड द स्टेप नंबर 5 एज वेल। This intermediate molecule is catalyzed by an enzyme, नाम याद नहीं रखना, and two more phosphate groups again produce, and two more ATP molecules are also be generated by the adenosine diphosphate molecule। ये वो स्टेप है जो अक्सर A2 में बच्चों को डिस्टर्ब करता है कि ऊपर जो ट्रायोस फॉस्फेट था उसने अपना फॉस्फेट गिव ऑफ कर दिया है, तो अब तो फॉस्फेट बचा ही नहीं कुछ इंटरमीडिएट में। सही है बिल्कुल। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि बिसाइड दिस साइटोप्लाज्म में सम अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। तो वो अपना फॉस्फेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डोनेट करते हैं। अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स। द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरमीडिएट, that is 3 carbon compound, it is going to be converted into pyruvate molecule. It is also called pyruvic acid, along with the production of 2 ATP molecule, and it is also called substrate level phosphorylation। right। अब आपके पास ये जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस है ये अकॉर्डिंग टू A2 सिलेबस हमने 5 स्टेप में कंप्लीट किया है। आपको ये स्टेप्स फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। नंबर 1, phosphorylation, ATP is going to be used up. Number 2, again phosphorylation, isomerization, a molecule of ATP again used up. Fructose 1,6 bisphosphate molecule is formed in step number 2. So step number 1 and step number 2, these both are the steps where a molecule of ATP one by one is being utilized। तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। सही है। मसलन जैसे बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब बिजनेस शुरू करेंगे तो इनिशियल स्टेज पर बिजनेस को स्टेबल करने के लिए हम अपने पर्सनल जो है वो अकाउंट में मौजूद जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनी है, उसे जो है वो अपने बिजनेस में लाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। पहले दिन से ही जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट फ्यू मंथ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, स्टेप नंबर 1 में है 1 ATP, स्टेप नंबर 2 में है 1 ATP। तो 2 ATPs आर बीइंग यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस। अब ख्याल रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की एक फर्स्ट स्टेप है, एंड इन दिस स्टेप, स्टेप नंबर 1 and step number 2, in this step
एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वेस्टेड, यानी कि यूटिलाइज हुए हैं। तो अभी एनर्जी बनी नहीं है, एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी यूज अप हो रही है। स्टेप नंबर 3 basically is a splitting step where fructose 1,6 bisphosphate molecule is going to be split into two molecule of the 3 carbon compound which is called as triose phosphate. Again, ये triose phosphate एक generalized name है, specified name नहीं है, right? अब यहां से जो रिएक्शन है वो वन वन टाइम, यानी कि एक दफा कंप्लीट होगा फिर रिसाइकिल होगा। यहाँ से रिएक्शन को मल्टीपल ऑफ 2 में याद रखेंगे। स्टेप नंबर 3 लाइसिस हो गया। स्टेप नंबर 4 एक ऐसा स्टेप है जहां पर पहली दफा एटीपी ने जनरेट होना है और पहली दफा यहाँ से रिड्यूस एनएडी ने प्रोड्यूस होना है। तो ये कपल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है और इसके साथ साथ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। इस डिटेल में आपको बता चुका हूँ। स्टेप नंबर 4 एंड होगा तो फिर एक मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होगी विच इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। मैं नाम बताया था मैंने आपको, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फिनोल पायरुवेट। आपने नाम याद नहीं रखना, एग्जामिनर खुद बता देगा। इस फॉस्फिनोल पायरुवेट की प्रोडक्शन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस ने 2 एटीपी जनरेट कर दिए हैं एंड 2 रिड्यूस एनएडी की प्रोडक्टिविटी भी हो चुकी है। ऊपर अगर हम देखें ये रिएक्शन के एक समरी को, तो 2 पायरुवेट है, 2 एनएडी है, 2 एटीपी है। तो वी हैव गॉट 2 एनएडी जो यहाँ आ चुकी है, वी हैव गॉट 2 एटीपी एज वेल जो यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि ये 2 एटीपी तो वही हैं जो पहले हमने यूटिलाइज कर लिए हैं, यानी कि खर्चा हो चुका था। तो ये जो स्टेप नंबर 5 है जहां पर इंटरमीडिएट ने अगेन 2 एटीपी जनरेट करने हैं फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल और कन्वर्ट हो जाना है फाइनल प्रोडक्ट में जिसे नाम देते हैं पायरुवेट। ये सेकंड 2 एटीपी मिलकर टोटल ग्लाइकोलाइसिस की 4 एटीपी की जनरेशन कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये रिपीट कर दिया है प्रोसेस। पहला स्टेप याद रखिएगा फॉस्फोरिलेशन, दूसरा स्टेप फॉस्फोरिलेशन आइसोमराइजेशन, तीसरा स्टेप स्प्लिटिंग, फोर्थ स्टेप में एनएडी एटीपी प्रोडक्शन है, फिफ्थ स्टेप में 2 एटीपी की प्रोडक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो गया एंड, ग्लूकोज की फाइनल प्रोडक्टिविटी हो गई द मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड और पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस एनएडी। अब आपको मैं बात की आखिरी पॉइंट बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है बच्चों को। 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपीज, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपीज क्या हैं? 2 एटीपी बने हैं स्टेप नंबर, ऊपर देखें तो 2 एटीपी बने हैं स्टेप नंबर 4 में, 2 एटीपी बने हैं स्टेप नंबर 5 में, तो टोटल हो गए 4 एटीपी। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एटीपी, राइट? So this is called gross ATP. Now this gross ATP are the total ATP molecule produced by the glycolysis. अब हम थोड़ा सा बात को समराइज करते हैं कि क्योंकि टोटल 4 एटीपी जनरेट हो चुके हैं, तो ऊपर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो जो 2 एटीपी हमने यूटिलाइज करवाए थे उसे हम अपनी जो है वो शराफत की वजह से वापस कर देते हैं। तो हमारे पास बचे टोटल 2 एटीपी। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा अगर एग्जामिनर ग्रॉस एटीपी पूछता है तो 4 बताने हैं, एग्जामिनर नेट एटीपी पूछता है तो 2 बताने हैं। जनरलाइज ऐसे ही बात कर ले, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो योर आंसर मस्ट बी 2 एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्यों? इसलिए कि 2 एटीपी ने ऊपर इन्वेस्ट किए थे तो वो हम उसको रिटर्न कंसीडर कर लेंगे। आगे इस एंड की तरफ चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पर। तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यू कैन सी ओवर हियर द एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और ये आपने याद रखनी है। इन ग्लाइकोलाइसिस, तो व्हाट इज हैपनिंग, glycolysis needs 2 ATP molecule initial step. At the end of the glycolysis, total 4 ATP molecules are produced. 2 of them are written. So total net ATP that we have at the end of glycolysis, these are the 2 ATP molecules from 1 glucose. तो ये बेटा आखिरी वर्डिक है जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस के साथ शो कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्टिविटी। हो कि आपको आज की एक्टिविटी से जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मिल गई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।